we want to start unit and dimension. Unit in different system like a CGS system, IPS and MKS SI system. In CGS system, length measured in centimeter and mass in gram, time in second. In case of IPS system, foot pound second, length in foot and mass in pound and time in second. In MKS system, length in meter and mass in kilogram, time in second. But in SI system, we want to measure the length in meter and mass in kilogram, time in second, and electric current in ampere, thermodynamic temperature in Kelvin. It is denoted by T, K. So we want to firstly define dimension. Dimension of length. Dimension of length. It is denoted by L in square bracket. And dimension of mass, it is measured in kilogram, but in case of dimension, it is denoted by M. Dimension of time, time measured in second, it is denoted by capital T in square bracket. Stop. Dimension of different physical quantity like area, dimension L square. Formula of area A equal to pi r square. Radius measured in meter. Oh, unit of the area. Unit of area equal to meter square. Meter denoted in length, then it is equal to the L square. So the dimension of area equal to L square. Dimension of velocity. Velocity, rate of change of distance, it is known as velocity. Then V equal to ds upon dt, distance upon time. Distance in measure meter or time in second. Dimension formula L upon T. L upon T. So dimension of velocity equal LT minus 1. Dimension of velocity LT minus 1. Second case, dimension of acceleration. We know that acceleration is the rate of change of velocity is known as acceleration. It is denoted by A. A equal dv upon dt. Velocity measure meter per second upon second, and formula is meter per second square. Dimension of acceleration. Dimension of acceleration. Acceleration denoted by A. L upon T square. Then LT minus 2. Dimension of acceleration is LT minus 2. It is calculated by given method. Next, linear momentum. We know that linear momentum P equal to mv. Mass into velocity is known as momentum. Linear momentum. Then P equal to mv. Mass into velocity. Mass measured in kilogram, velocity measured in meter per second. We know that velocity change of distance, rate of change of distance, yeah, rate of change of ds upon dt is known as velocity. And P equal to mv. M in kilogram and v meter per second. And dimension formula of momentum. Dimension formula of momentum P equal, I am denoted in dimension kilogram, capital M, meter L upon T.
डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं तो t की पावर -1, देन mlt -1. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम mlt -1. नेक्स्ट, dimensional formula of impulse. What is impulse? Impulse is the change of momentum in a least time. Change of momentum in least time. It is known as impulse. The impulse formula similar to momentum because impulse is the change of momentum in an instantaneous time. It is known as impulse. It is similar formula like a dimension, that mlt -1. Next, force. We know that force F equal to ma. Newton's second law. F equal ma. Unit force according to Newton's second law. Force F equal ma. Mass into acceleration. It is known as force. Unit of force F equal mass measured in kilogram and a acceleration dv upon dt. v meter per second upon second, meter per second square, kilogram meter per second square. Dimension formula of force. Dimension formula of force equal kilogram m, meter length l, second t power -2. Then mlt -2. It is also known as Newton. Dimension of Newton mlt -2. Next, energy. We know that kinetic energy, potential energy, similar dimension formula. Kinetic energy formula. Kinetic energy equal to half mv square. Half mv square. Dimension unit of kinetic energy. Unit of kinetic energy equal kilogram. Velocity unit. Velocity v equal meter per second in velocity square, meter square per second square, meter square per second square. Dimension formula of kinetic energy, like energy. Dimension formula of energy E equal kilogram denoted in dimension formula capital M, meter square length, it is L square upon T square. T को लिख देंगे T पावर -2 और डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml स्क्वायर T पावर -2. एनर्जी आल्सो यूनिट जूल, लाइक ए फोर्स यूनिट न्यूटन, सिमिलर एनर्जी यूनिट जूल. जूल को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ml स्क्वायर T पावर -2. जहां जूल टर्म यूज होगा वहां पे हम ml स्क्वायर T पावर -2 लिख सकते हैं, और जिस जगह पे न्यूटन का टर्म यूज होगा वहां mlt -2 का यूज कर सकते हैं. ये आप ध्यान रखें. न्यूटन को हम लिख सकते हैं न्यूटन, ये याद रखना आपको, ml T -2, क्योंकि न्यूटन यूनिट है फोर्स की, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं mlt -2. तो न्यूटन को डायरेक्ट आप यूज करेंगे mlt -2, और जूल को, जूल डायमेंशन है एनर्जी की, इसलिए जूल टर्म जहां पे आ जाए वहां आपको डायरेक्ट यूज करना है ml स्क्वायर T -2. इससे आपका टाइम बच जाएगा और डायरेक्ट आप यूनिट यहां पे रख सकते हैं. तो ये दो यूनिट आपको लर्न करनी है. न्यूटन को mlt -2 लिख सकते हो और जूल को ml स्क्वायर T -2. In case of work, we know that work is the force into displacement. It is known as work. Force into displacement. W equal force into F into D. It is formula of work done. W equal to F into D. Unit of work done. Unit of work done W equal force measured in Newton
न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर। अभी आपको बताया था न्यूटन को हम सीधे लिखेंगे क्या, इन डायमेंशन फार्मूला MLT-2 डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अभी आपको फोर्स का फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा डायमेंशन, इसके बाद में तब न्यूटन का डायमेंशन निकालोगे, इसलिए न्यूटन की डायमेंशन आपको याद करके रखनी है, क्योंकि न्यूटन को हम डायरेक्ट यूज करेंगे MLT-2। अब मीटर की डायमेंशन हो जाएगी L। अब कंबाइन कर लेंगे दोनों डायमेंशन को, तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन W इक्वल ML स्क्वायर T-2, ML स्क्वायर T-2। इट इज द डायमेंशन ऑफ W। तो W की डायमेंशन कितनी हो गई, ML स्क्वायर T-2। लास्ट डायमेंशन है, इट इज फंडामेंटल डायमेंशन। इनको आप याद कर लेंगे तो जो इनसे फार्मूला बनेंगे वो सब आपको सभी डायमेंशन याद हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट डायमेंशन है पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। फर्स्टली वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ पावर। पावर P इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद इन टाइम। तो dW इक्वल dW अपॉन dt, इट इज इक्वल टू पावर। जनरली हम लोग लिखते हैं W अपॉन T, W अपॉन T इक्वल टू पावर। अब डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज करना है, क्योंकि W की यूनिट भी जूल होती है, क्योंकि ML स्क्वायर T-2 अभी हमने बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल। इसको क्या लिख सकते हैं, जूल। W की यूनिट होती है जूल। अब वैसे क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जूल का हमने कहा था डायरेक्ट टर्म आपको यूज करना है, इसलिए जूल का जहां पे जूल यूज होगा उसकी डायरेक्ट आपको डायमेंशन का फार्मूला रखना है, यहीं पे ML स्क्वायर T-2। तो यहां इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा पावर का, डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर P इक्वल जूल पर सेकेंड। जूल की डायमेंशन आप यूज करेंगे डायरेक्ट, कितनी है, ML स्क्वायर T-2 अपॉन सेकेंड हो जाएगा T। तो T को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T-2, T-3, T-2 है, T ऊपर जाएगा माइनस का होगा -1, तो -2 और -1 हो जाएगा -3। ML स्क्वायर T-3 इट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो इसी से हम डिफरेंट टाइप की डायमेंशन, इट इज द फंडामेंटल डायमेंशन, इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो और भी फार्मूले इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज डायमेंशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशन कैलकुलेट करना है थर्मल कंडक्टिविटी की। तो आपको फार्मूला जब आप याद करेंगे तभी इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रटने से आपको डायमेंशन नहीं आएगी, इसलिए आपको सबसे पहले फार्मूले पे फोकस करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा फ्लो ऑफ हीट किसी रॉड में, उसका टेम्परेचर θ1 या θ2 है, इसमें लेंथ L है रॉड की, तो हीट फ्लो आप कैलकुलेट कर सकते थे। Q प्रोपोर्शनल टू होता है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो Q प्रोपोर्शनल टू A डिफरेंस इन टेम्परेचर θ1 माइनस θ2 इनटू T फ्लो विद इन टाइम अपॉन लेंथ L। हीट फ्लो का ये फार्मूला है, Q प्रोपोर्शनल टू A θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, जिस रॉड में हीट फ्लो कर रहा है, और टाइम T एंड लेंथ L। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। K is the proportionality constant, it is known as thermal conductivity. Then K equal Q into L upon A θ1 minus θ2 into T। अब आपको यूनिट कैलकुलेट करना सबकी। हीट की यूनिट होती है जूल, लेंथ मीटर अपॉन ए एरिया मीटर स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर। θ1 minus θ2 is temperature, it is denoted by K or theta, and time in second। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा जूल अपॉन मीटर केल्विन सेकेंड। अब आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। आपको हमने पहले बताया जूल की डायमेंशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार, इसलिए डायमेंशन को आपको जूल की डायमेंशन आपको याद रखनी है। जूल की डायमेंशन को आप लिखते हैं ml स्क्वायर T-2 अपॉन मीटर डायमेंशन हो जाएगी L, टेम्परेचर K और थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, किसी बुक में K लिखा होगा, किसी बुक में थीटा होगा, एंड टाइम इन सेकेंड T। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देन डायमेंशन ऑफ K इज द कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशन ऑफ K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। M तो है नहीं, तो M हो जाएगा यहां पे L-2, L ऊपर जाएगा, L-3, T ऊपर जाएगा, T-3, और नेक्स्ट हो जाएगा जाके θ-1। तो डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर ली, यहां से डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि यहां से L को आपने कैलकुलेट कर लिया था, तो यहां ml स्क्वायर T-2 ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ जूल, और ये हो जाएगी अपॉन में लेंथ, और K इज द टेम्परेचर एंड T इज द सेकेंड। देन ml की पावर -3 एंड T पावर -2, थीटा पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, dimension of surface tension, dimension of surface tension, dimension of surface tension, surface tension denoted by T। we know that surface tension force per unit length, it is known as surface tension F upon L, force per unit length। F unit of force न्यूटन, और यहां पे आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आपको डायरेक्ट यूज करना है मीटर में, पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन T इक्वल, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ T, न्यूटन को आप लिखेंगे ml T-2 अपॉन लेंथ को लिखेंगे L, मीटर से लेंथ मेजर करते हैं, तो L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी mt-2, it is the dimension of surface tension। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, coefficient of viscosity, it is denoted by eta। सबसे पहले ईटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन ईटा के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टोक्स फार्मूला आना चाहिए। स्टोक्स फार्मूला, फ्लूइड मोशन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्टोक्स फार्मूला
F इक्वल 6 पाई ईटा आर बी। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट, इसी का आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। R इज द रेडियस एंड V वेलोसिटी। 6 पाई इज द कांस्टेंट, तो ईटा इक्वल आ जाएगा, यहां से ईटा इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे तो ईटा आ जाएगा F अपॉन 6 पाई आर बी। 6 पाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स न्यूटन अपॉन रेडियस मेजर इन मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ ईटा मीन्स विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन mLT माइनस 2, मीटर L स्क्वायर एंड सेकेंड T माइनस 1, सॉरी L स्क्वायर T माइनस 1। इसको समराइज कर लेंगे। डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल m, L को कैलकुलेट करेंगे तो L हो जाएगा m, इस पे +1 हो जाएगा, यहां -2 है तो ml माइनस 1, t ऊपर जाएगा, यहां -2 है तो t माइनस 1, ml माइनस 1, t माइनस 1। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा विस्कोसिटी। तो डायमेंशन फार्मूला विस्कोसिटी के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड पेपर में करंट के को आपको डायमेंशन फार्मूला में लिखना है। करंट को आप मेजर करते हैं एम्पियर से और एम्पियर को आप ए से डिनोट करते हैं डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई क्यू अपॉन टी होता है, कूलाम पर सेकेंड। क्यू को आप मेजर करते हैं कूलाम में और टी को सेकेंड में, तो कूलाम पर सेकेंड, इसी को लिख देते हैं हम लोग एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है एम्पियर का, उसको हम कैपिटल ए लिखते हैं डायमेंशन में, बस कैपिटल ए। तो ये करंट की डायमेंशन है और कूलाम का डायमेंशन सी रहती है। आप देखा होगा कूलाम के लिए हम लिखते हैं क्या? सी। तो यहां पे आपको लिखना है, फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि करंट का यूज करेंगे टर्म, वहां पे एम्पियर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आप कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जहां पे आप फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन जहां पे होता है, उस जगह पे एक ऐसा एरिया होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। F को आप फिर से लिखेंगे वही कूलम। क्या लिखते हैं? F को लिख देंगे कूलम। फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन पर चार्ज को आप क्या लिखेंगे? कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू डायमेंशन। आपको हम बताया कि आपको डायमेंशन न्यूटन की याद रखना है, तो न्यूटन के आप डायरेक्ट डायमेंशन यूज करेंगे, mLT माइनस 2। कूलाम की डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे डायमेंशन करंट की डायमेंशन होती है A, तो कूलाम की डायमेंशन हो जाएगी I इंटू सेकेंड मीन्स 80। डायमेंशन ऑफ कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगी? 80। क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल में कूलाम इक्वल टू हो जाएगा A इंटू सेकेंड मीन्स 80। तो कूलाम, जहां पे कूलाम दिया गया, आपको याद रखना ये है, कूलाम की जगह आपको यूज करना है कूलाम डिनोटेड बाय C इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला में 80।
डायमेंशन में कूलाम को क्या लिखेंगे, AT, तो कूलाम की जगह हो जाएगा A इंटू टी। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा ml T-3 A-1 it is the formula of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने ये कैलकुलेट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट फार्मूला आप कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले आप यहां पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज Q, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय P, V इक्वल टू W अपॉन Q डॉट। आपको हमने बताया था इससे पहले कि W को आप लिख सकते हैं जूल, क्योंकि जूल वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और जूल का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होगा, जूल अपॉन टेस्ट चार्ज Q को लिखेंगे कूलॉम। तो डायमेंशन फार्मूला जूल का जैसे न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T-2, इसी तरह से हमने कहा था आपको जूल का फार्मूला आपको याद रखना है। वर्क डन के लिए जूल यूज करेंगे, एनर्जी में भी जूल होता है, तो जूल को आप डायरेक्ट टर्म में यूज कर सकते हैं। तो जूल का हो जाएगा mL²T-2, ये आपको फार्मूला याद रखना है। जहां पे जूल का टर्म यूज होता है उस जगह पे तुरंत लिखेंगे mL²T-2। और कूलाम का भी हमने कैलकुलेट करके बताया, कूलाम को क्या लिखते हैं डायमेंशन में, AT, तो यहां पे हो जाएगा कूलाम की जगह हो जाएगा AT, कूलाम हो जाएगा AT। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल V इक्वल mL²T-2 है, इसके बाद T ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा T-3 A-1। सम फिजिकल क्वांटिटी, सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आपको हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इन सेकंड पेपर।